Welcome to Connecting Us, Bahujan India News YouTube channel and other media platforms. I want to a question that many students problem that they are studying in the second year, that graduation, and how to apply this scheme. So basically your question is how they can able to conquer their study abroad dreams and what to do and all. So it's very easy. We at IDB, what we do is basically we just help you out in terms of processing your file to the top 50 universities, which was recommended by the Rajasthan government. नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया न्यूज़। भरतपुर महापौर अभिजीत कुमार की अभिशंसा पर राजीव गांधी फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस योजना के जरिए राजस्थान सरकार राज्य के 200 विद्यार्थियों को निःशुल्क उच्च शिक्षा के लिए विदेश की टॉप 50 यूनिवर्सिटी में भेजने जा रही है। ऐसे में भरतपुर जिले की जवाहर नगर कॉलोनी स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक भवन में एक भव्य सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में महापौर अभिजीत कुमार व न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कई देशों से अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा विद्यार्थियों को संबोधित किया गया और वहां की संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया से अवगत कराया। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख ऑटोमेटिकली 90% लोगों के हाथ नीचे हो जाएंगे। वो हाथ ऊपर राजस्थान गवर्नमेंट कर रही है सो दैट आप लोग वो सक्सेस ले सके। We have placed over 5 lakh plus students already. I am working with IDB since 6 years, and I think IDB's existence is by far the largest, but we have never seen any initiative by any government so far in the history of India so far, what I know. However, we have seen lot of initiatives, but on a very small grade. But this is something which is very good. So I would like you guys to utilize this information and make sure, have a dream. बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि आप जा रहे हो इंडिया को छोड़ के, तो how are you going to contribute to the economy? There are number of ways you can able to contribute to the economy. Normally जब आप जाते हो, I will give one of the example. आप ही की तरह एक स्टूडेंट ये जो अपने फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन पीरियड के टाइम पर बात करते हैं कि मैंने ये यहाँ से ऐसे सीखा था, वो वहाँ से मैंने ऐसे सीखा था। तो guys, every time when we get the opportunity, we have to utterly utilize. And before I go ahead and giving the initiative to my other colleagues to give you guys more information about the universities and the destination, I would like to thank again our honorable mayor. He was constantly in touch with us. He was really keen to push us as an organization to help you guys. Just to announce everything that because of this scholarship, we as also IDB, we have 0% fees for any of your application. So that means from your 0 to 100, everything will be funded either by the Rajasthan government or it will be free of cost. So that is how you're going to do. What you need to do is just have your dreams, visions. Visions are something we have to dream of and achieve it. So this is what exactly we're going to do now. And furthermost, I would like to go ahead giving few more lines about our destination part and all. So बहुत सारे बच्चे थोड़े से हो गए होंगे क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट बैठे हैं उन्होंने अंग्रेजी में बोला जॉब का, ये जॉब है, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, तो वो नेचुरल जो उनका कन्वर्सेशन का स्टाइल है वो इंग्लिश का है। बट डोंट वरी, अगर आप तुम से साइकिल चलाने कितने लोग जानते हैं? एंटायर हाउस। अगर आप साइकिल चलाना सीख सकते हैं तो इस दुनिया में ऐसी कोई स्किल नहीं है जिसे आप लर्न नहीं कर सकते। आप में विवेक बुद्धि है, सहज बुद्धि जानवरों में होती है
शाम में बच्चा 5 दिन का होगा, पानी में डाल दो क्या करने लग जाएगा? उसने किसी ने स्विमिंग शब्द सिखाई नहीं, उसकी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जान बचाने के लिए वो तैरेगा। आप में नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं। आपको जिंदगी को चलाने के लिए अपने माँ बाप से लेके इवन पैर चलाना भी आपको कोई सिखाता है। तो जब मैं सीख सकता हूँ यार हिंदी मीडियम का, और मैं कम से कम भारत की जो पहली इंस्टीट्यूट है IIM अहमदाबाद, और मैं ऐसी जोरदार बोली का हम सीख सके तो तुम क्यों ना सीख सके। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। Nobody is smarter than you, nobody is better than you, you are the best. आप अपने मन में ठान लीजिए। हार्डली 5-6 महीने का काम है, IELTS करना होता है, जैसा बताया इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इससे जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग बच्चे हैं, नॉन स्पीकिंग वाले हैं, वो लोगों के लिए कंपलसरी होता है बाहर की जब इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज हम जानते हैं तो एग्जाम पास करना। और क्या है 9 घंटे से 6:30 नंबर तो आते हैं, 7 नंबर आते हैं, और इसमें तो हम माहिर हैं। देखो बोलने के लिए आपको माहौल चाहिए, लेकिन लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको माहौल की आवश्यकता नहीं। तो आप थोड़ी सी मेहनत करें, और आपका ये इतनी बढ़िया स्कीम है, इतनी बढ़िया स्कीम है, जैसा मैंने बताया हम लोग सिर्फ इसके बारे में सपने देख सकते हैं। 99% लोग, मैं तो ये कहूँगा 99 सपने ही देख सकते थे, परंतु आज सपने देखने वाले उसको सपनों को साकार भी कर सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने दिया। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं आंसर करूँगा, और बेसिक्स ऑस्ट्रेलिया के बारे में कवर करेंगे। बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। अगर 2017 की बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया में 6 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए थे, राइट। 8 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में जिनकी रैंकिंग हमेशा टॉप 150 के अंदर रहती है। जैसे कि सर बता रहे थे इंडियन यूनिवर्सिटी 250 के आबादी है, तो 8 यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं ऑस्ट्रेलिया में 150 के अंदर रैंक करते हैं। यानी सारी यूनिवर्सिटी रिसर्च ओरिएंटेड है। अब क्या डिफरेंस होता है इंडियन यूनिवर्सिटीज में वर्सेस यूनिवर्सिटीज जो बाहर की है? एक सिंपल सा डिफरेंस है, वहाँ पर जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है। आपको एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें पढ़ाई जाती है जिससे आप उनको अप्लाई कर सको ये वर्ड को। मेरी पार्ट बहुत कम होता है। सो एज पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ 10+2+3 का एजुकेशन सिस्टम होता है। सेम ही ऑस्ट्रेलिया में भी फॉलो किया जाता है 10+2, और वहाँ बैचलर जो होती है वो 3 साल की होती है। कई ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ 4 साल की बैचलर भी होती है, वो मेरे और कलीग से आपको बताएंगे किसी यूनिवर्सिटी में कैसा है। यहाँ बैचलर 3 साल का हुआ, 2 साल का इंडिया के अंदर होता है, क्योंकि ये बेनिफिट की सेम टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम में आप लोग चल रहे हैं। अब बात होती है एडमिशन्स कब होते हैं। एडमिशन्स ऑस्ट्रेलिया में यूजली जुलाई और फरवरी, साल में 2 बार एडमिशन्स होते हैं। तो जो बच्चे भी 12th पास कर रहे हैं, सपोज कि उन्होंने जुलाई में एडमिशन कर दिया तो जुलाई से सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगले सेशन में होता है तो अगला सेशन वो मार्च में स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ें चाहिए अपने को एडमिशन्स के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत हाई-फाई चीज़ें चाहिए, बट यस आपके ग्रेड सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप 12th के बाद बैचलर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो कुछ एक मिनिमम कट ऑफ मैं आपको बताता हूँ जिससे आपके ध्यान में रहेगा। अगर वो 12th में है आप तो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर पाएँ। अगर आप 12th में हैं तो मिनिमम 85% के लिए आपको टारगेट करना पड़ेगा, और अगर आप बैचलर्स में हैं तो मिनिमम 65% आपकी होनी चाहिए। जो लिस्ट है जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए टॉप 50 की लिस्ट है, उसके यही क्राइटेरिया है। दूसरा एक क्राइटेरिया होता है आइल्स एग्जाम, जो कि दूसरा मैंने बताया था। आइल्स एक इंग्लिश का एग्जाम है, इसमें 4 सेक्शन होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। हर सेक्शन नॉन में से दिया जाता है, आपको सिर्फ 6.5 ही स्कोर करना है इसके अंदर। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आप ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, 6.5 मिनिमम होगा इसमें, ठीक है। अब 2 एक्सपेंसेस होते हैं, सब चीज़ें ठीक है, पैसा क्या लगेगा। तो जो भी अगर बजट आप यूनिवर्सिटी का देखेंगे 2 चीज़ें होती हैं, एक ट्यूशन फी और एक आपके रहने खाने का खर्चा।
एक तो होगी पढ़ाई, वहाँ कल्चर ये है कि बच्चों को साइड बाय साइड पार्ट टाइम जॉब भी कराई जाती है। तो ऐसा नहीं है हमारे यहाँ बोलते हैं कि इतना तो पढ़ाई पे ध्यान दें, जॉब मत करिए, पैसे हम देख लेंगे। पैसे तो वैसे गवर्नमेंट देखती है, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि आप पार्ट टाइम जॉब करें साथ में, उसका आपको बेनिफिट लॉन्ग टर्म में भी मिलता है। अगर आप टीचर सेक्टर में आना चाह रहे हैं, फुल टाइम जॉब करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। हर कोर्स खत्म होने के बाद आपको कुछ टाइम उस कंट्री में दिया जाता है, उसे बोलते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। अगर आप 2 साल का मास्टर्स कर रहे हैं या 3 या 4 साल का बैचलर्स कर रहे हैं, तो आपको कंट्री ऑस्ट्रेलिया 4 साल तक वहाँ रहने की परमिशन देती है और आप वहाँ फुल टाइम जॉब करते हैं। आगे अगर आप चाहें तो वहाँ पे सिटीजनशिप परमानेंट रेजिडेंसी भी कर सकते हैं। अगर आप वापस इंडिया में काम करना चाहते हैं अपने देश में, तो अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई ऐसे क्वेश्चन है जो आप ऐसे पूछना चाहेंगे या फिर हम क्वेश्चन लास्ट में एक बार ले लेंगे? If you have an opportunity to get into the medical sciences, see, it's all about the priority. If you find a better university, better ranking, then why not? I mean, don't you think that if you find a better university, you will always have a better chance for your employment and for other things? And again, that too is coming as with almost 0% cost. Anyways, whatever you are doing for me, it's going to cost you. Even it is minor, cheaper, it will still cost you. Right? So you want to study in a top class university for free, or you want to pay something in the university which is having slightly less time. But of course, at the end of the day, it's your priorities for you. Thank you so much. It was a very good question, by the way. Please bring it up. Last question. I have not included this question into the entire. What is the full form of IDP? No one has produced it. International Education. So there is not E. It's not IEP. IDP. Absolutely right. I just need this guy's name. My name is Mahar Singh. Okay, thank you so much. Brilliant, brilliant. It's International Development Program. You guys heard about IATS? It's one of the important requirement for you guys. Do you know anything about the full form of IELTS? Okay, you definitely know. Alright. 4411888. Number is 4411888. And the STD code for Jaipur is 0141. I just gave you my landline number of Jaipur office. You guys can call anytime. Give a reference that you have attended this session. You can be able to have direct one-to-one conversation with any of our counselors from Jaipur, and you can be able to meet this counselor also on face-to-face interaction on Zoom. We are going to assist you. And please, when we call you guys, please make sure that you have 2-3 basic information with you. Is the academic record of percentage, what percentage you have secured, what year you are on at this particular point of time, and what university or what country you want to apply. Rest we will take care of it. So I will repeat this number. STD code is 0141 for Jaipur, 441188. You can also email the queries to 441188. Alright, so thank you so much. You can also go and do some sort of research on our website, idp.com. Go through, Google it, get a lot of information. When you go on to YouTube, Instagram, any social media, just type in IDP. You'll find hundreds of course-related information, lot of information where you can able to get your assistance further. Thank you so much, and I would like to give opportunity to our Mayor sir. He's going to conclude the rest of the conversation. Jai.
this UK destination. So अगर अपन UK की बात करते हैं तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो UK के बारे में जानते हैं और वहाँ पे पढ़ने जाना चाहते हैं? एक आइडिया मुझे दे सकते हैं आप? हाथ बोल करके बता सकते हैं? Oh, that's really great. So अगर अपन UK की बात करते हैं, like it's an English speaking country, and यहाँ पे अगर बात करें स्टडी पैटर्न की, स्टडी पैटर्न किस चलता है? बैचलर्स में जाना चाहते हैं, बैचलर्स के पास 2 टाइप के होते हैं, 3 साल का भी होता है, 4 साल का भी होता है। नॉर्मल अगर हम इंडिया से कंपेयर करें, यहाँ पे मोस्टली 3 साल की होती है, एंड देन छोटे 4 साल का होता है। तो मोस्टली अगर मैं यूके के बैचलर्स की बात करूँ तो जैसे मैंने 2 टाइप के बताए हैं आपको, तो मेन डिफरेंस क्या होता है? आपका जो स्टडी होता है वो 3 साल का ही होता है, ठीक है। जैसे 3 साल डिग्री की बात करता हूँ तो वहाँ पर आपका स्टडी 3 साल का ही होगा। 4 साल की डिग्री की मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ईयर आपका पढ़ाई होता है। थर्ड ईयर में आपको एक चांस मिलता है कि आपको काम करने का मौका मिलता है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्लेसमेंट, जिसमें आप सेम कंट्री में काम कर सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी से आपको अदर कंट्रीज में या अदर सिटीज में भी लेके जाते हैं गेट टू वर्क, ताकि आप पढ़ाई के साथ साथ काम कर सको। और जैसा आप बोलते हैं यूके में या बाहर कंट्रीज में आपको एडवांस नॉलेज मिलती है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, तो वो नॉलेज आपको यहाँ से मिलती है। या पहले पढ़ाई करते हैं, साथ ही साथ आप पहले काम भी करते हैं, सो दैट जो आपने सीखा है वही चीज़ आप वहाँ पे काम भी कर सकते हैं। थर्ड ईयर के साथ में पढ़ाई किया, फोर्थ ईयर वापस आके आप अपना थर्ड ईयर कंप्लीट करते हैं। ये होगी बैचलर्स की बात। मास्टर्स की अगर बात करूँ तो मास्टर्स में के पास 2 टाइप के होते हैं यूके में। एक होता है फर्स्ट 1 साल, दूसरा है 2 साल। फर्स्ट ईयर में सेम आपका पढ़ाई होता है और सेकेंड ईयर में वही सेम बात इंटीग्रेटेड प्लेसमेंट होता है, ठीक है। जिसमें पहले साल अपने पढ़ाई करी, सेकेंड ईयर में आपको चांस मिलता है काम करने का, मतलब जो भी चीज़ आपने पढ़ाई करी है उसको अपन प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब सीख सकें उस चीज़ से अपनी थर्ड ईयर की पढ़ाई, ताकि अपन प्रैक्टिकल उसको काम करके सीख सकें। ये हो गया अपना स्टडी पैटर्न। अगर मैं बात करता हूँ अपने एंट्री रिक्वायरमेंट की, क्या क्या एंट्री रिक्वायरमेंट है अकेडमिक की अगर बात करते हैं तो मिनिमम से स्टार्ट करते हैं तो 50% में यूनिवर्सिटीज आर एक्सेप्टिंग यूएस। और अगर टॉप की बात करता हूँ, टॉप यूनिवर्सिटीज अगर आप अप्लाई करना चाहो तो मिनिमम यू हैव टू हैव 85%, इसके ऊपर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आईएलटीएस के एग्जाम की बात करते हैं तो आईएलटीएस एग्जाम ऐसा है कि आपको किसी भी इंग्लिश कंट्री में आप जाते हो तो देना मैंडेटरी है, बट यूके इज द ओनली कंट्री जो आपको इंग्लिश में भी वेवर देती है, मतलब आईएलटीएस के एग्जाम के बिना भी आपको जा सकते हैं। कभी काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं बोलते हैं कि इंग्लिश नहीं निकल रही है, आईएलटीएस एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, तो उसमें क्या कर सकते हो आप? आईएलटीएस का जो वेवर है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, बट ओनली कंडीशन यहाँ पे कंडीशन है आपको आईएलटीएस का वेवर मिलने के लिए। एंड कंडीशन ये बोलती है कि आपका जो 12th है, 12th में हम सब लोग इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो वो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके 75 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। अगर सीबीएसई बोर्ड से, अगर स्टेट बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, तो उसमें यू हैव टू हैव मिनिमम 85%, उसके बेसिस पे आपको इंग्लिश का भी ग्रेड मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, नॉर्मली एडवर्ड्स वगैरह को आप यूनिवर्सिटी से ले सकते हो जहाँ पे आप पढ़ते हो, इसको डॉक्यूमेंट है। और अगर मैं बात करता हूँ यूके की, लाइक व्हाई यू गाइस आर यू शुड चूज यूके डेस्टिनेशन, आप लोग को यूके डेस्टिनेशन क्यों चूज करनी चाहिए, पढ़ाई वहाँ जाके क्यों करनी चाहिए? तो यूके एक टॉप डेस्टिनेशन फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है। यूके की अगर बात करूँ तो यूनिवर्सिटीज है, अगर टॉप वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यूके की 4 ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो टॉप 10 के अंदर है। आपकी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, इंपीरियल कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, ये 4 ऐसी यूनिवर्सिटीज है टॉप 10 के अंदर आती है वर्ल्ड में, सबसे कम्पीट करके टॉप पे आती है। और कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कॉन्टिन्यूसली मतलब सिंस एजेस काफ़ी लंबे टाइम से वो में टॉप पे आती है। एंड अगर बात करता हूँ एजुकेशन की, एजुकेशन कैसा है वहाँ, तो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ऐसा है वो काफ़ी सालों से चलता हुआ है। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ऐसा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको वहाँ पे ऐसा मिलता है। एडवांस नॉलेज जिसको बोलते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज में स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, जो एवरीवन शुड गेट, हर किसी को नॉलेज मिलनी चाहिए, सो दैट जो अपने एम्स हैं, जो आपने सोच रखा है मुझे ये बनना है, मुझे करना है, तो वो नॉलेज आपको हेल्प करके टू गेट ऑन दैट एम, वो एम जो आपके सलेक्ट है, सपना आपको देखता है आगे बढ़ने का, दैट नॉलेज, बिकॉज सपना आपको हर कोई देखता है, एम हर कोई देखता है, बिकॉज बट जो नॉलेज है हमको चाहिए, वो नॉलेज हमको मिलती है यूनिवर्सिटीज। इंडिया में और मैं बात करता हूँ बाहर से, तो लाइक कंपैरिजन करते हैं दोनों, तो दिस इज द ओनली डिफरेंस कि वहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज
एडवांस वर्जन, वहाँ का स्टडी बेटर नहीं है सर। मतलब ऐसा नहीं है कि अपन एक दिन का जैसे यहाँ इंडिया में होता है नॉर्मली पहले एग्जाम से पढ़ के पास करते हैं, बट वहाँ ऐसा है कि आपको पूरे साल पढ़ना पड़ता है। वहाँ पे नॉर्मली एग्जाम्स नहीं होते, वहाँ पे आपके असाइनमेंट्स होते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आपको वो करने ही पड़ते हैं असाइनमेंट्स, आपके प्रोजेक्ट्स आपके कंप्लीट करने। सो दिस इज स्टडी पैटर्न जो वहाँ पे चलता आ रहा है और जो अपन के लिए यूजफुल है टू गेट आर एम और जब ये सब में पूरा करें। ठीक है, और अगर बात करें एक्सपेंसेस की कि कितना खर्चा लगता है या इंडिया में जो देख के प्लान करने के बाद, बट नॉर्मली जो मेन टॉपिक है, दिस इज द मेन टॉपिक के लिए कितना खर्चा आता है। तो अगर जो भी यूनिवर्सिटी में बात करता हूँ तो अगर मास्टर्स की अगर बात करते हैं नॉर्मली 1 साल का होता है मास्टर्स आपका, तो एक एवरेज अमाउंट अगर हम लेके चलें फ्रॉम एवरेज यूनिवर्सिटी टू टॉप यूनिवर्सिटी 15 लाख से आपका मिनिमम अमाउंट स्टार्ट होता है एग्जैक्टली, वो आपको 25 to 30 लाख, और अगर कुछ मोस्ट टॉप यूनिवर्सिटी है तो वो 35 तक जाते हैं। ये 1 साल का आपका कुछ भी होता है। लिविंग एक्सपेंस की अगर बात करता हूँ तो लिविंग एक्सपेंस यूके में 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इनसाइड लंदन, बिकॉज लंदन एक ऐसी सिटी है, आप सभी उसका नाम सुना होगा, काफ़ी महंगी सिटी है मैं बोलूँगा, तो वहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 साल में 12 लाख रुपये चाहिए होता है। एंड आउटसाइड ऑफ लंदन कोई भी सिटी हो उसमें आपको मिनिमम अप्रॉक्सीमेटली 9.5 लाख रुपये चाहिए होता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लिविंग एक्सपेंस। और जब अपन लोग बात करते हैं लिविंग एक्सपेंसेस की, तो वहाँ पे क्या होता है, आप हर स्टूडेंट को लाइक आप लोगों को अलाउ होता है 20 आवर्स का भी पार्ट टाइम जॉब करना, और पार्ट टाइम जॉब लाइक नॉर्मली हम हर बच्चे को सजेस्ट करते हैं आपको करनी चाहिए, बिकॉज काफ़ी सारे फायदे होते हैं। आपका हो गया अर्निंग का कोई वे, इससे आप पैसे कमा रहे हैं तो अपना जो लिविंग होता है इजीली निकल जाता है। एंड इट इज 100% श्योर कि आपको जो लिविंग एक्सपेंसेस है, रहने खाने का खर्चा है, पूरा का पूरा निकल जाता है। साथ में रहने खाने के खर्चे का जो अर्निंग होती है उसके साथ साथ आप जब मार्केट में काम करते हैं, आप वहाँ के जब लोकल मार्केट में निकलोगे आपको मार्केट की नॉलेज होती है, आप नए नए लोगों से मिलते हो, आपके कनेक्शंस बढ़ते हैं, आपके लिंक्स अच्छे होते हैं, जान पहचान बढ़ती है आपकी, और वो जान पहचान आपको आगे प्लेसमेंट लेने में बहुत ही फायदेमंद होता है। बिकॉज जितने ज़्यादा अपने अच्छे कनेक्शन होंगे उतने ही ज़्यादा आपको प्लेसमेंट मिलने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप कंडीशन पे ये हो गया है। इसके अलावा कोई भी आपके क्वेश्चन कोई यूटी के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो उसको आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो जैसे अगर आप अपना प्रोसेस आईडी से स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप लोगों को एक काउंसलर असाइन करके जाता है जो पूरे के पूरे प्रोसेस में आपके साथ रहता है। एक वर्ड होता है हैंड होल्डिंग, वो हैंड होल्डिंग काउंसलर आपको करेगा, आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप काउंसलर करवाएगा, और आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कैसे अप्लाई करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या होगा, आप डायरेक्टली अपने काउंसलर से बात कर सकते हैं, काउंसलर विल गाइड यू अबाउट एंटायर प्रोसेस। थैंक यू। Hello. Yeah, it's audible. Good afternoon, everyone. My name is Subhav, and I am personal feedback from SRM University. So my question is, are students eligible for DEPAT MBA program? Sorry? DEPAT MBA program. Okay, what country you are from? US. Sorry? US. You have an additional mic, guys? So I've just let my destination expert to answer it. Three masters is there. Yeah. So for that you have to get into the prerequisites की हर यूनिवर्सिटी यूएसटी prerequisites रखती है कि आपको एडमिशन से पहले क्या परसेंटेज या मीडिया जितना स्कोर होनी चाहिए। तो स्पेसिफिक होती है यूनिवर्सिटी के लिए, बट अगर विदाउट आपको एडमिशन दे रहे हैं तो एप्लीकेशन इसके लिए आपको आईएलटीएस एग्जाम देना होगा और आपकी मार्कशीट में ट्रांसफर कौन भी कैन ऑलवेज गेट इट Presentation here for IIT Airport as a senior master. So here today I give you more information about Canada. Canada के बारे में ही information दूंगा. So Canada के बारे में हम बात करते हैं तो Canada एक बहुत ही बड़ा country है, big country. Area wise जब बात करते हैं Canada से, so it is second largest country of the world after Russia. So being a second largest country of the world and being a developed country
सारी हैं इस टाइम just to go there and grab the opportunity in Canada. So apart from the area of Canada, जॉब मैंने आपको बताई थी कि बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं. अगर हम जॉब रेशियो की बात करते हैं, करियर प्रोस्पेक्ट की बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा का एम्प्लॉयमेंट रेट है दैट इज 90%, यानी कि 90% बच्चों को जॉब मिल जाती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि कोर्स खत्म होने के विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर आपको जॉब मिल जाती है 90% बच्चों को. अब आपको डिसाइड करना है आपको अपनी स्टडीज के थ्रू आपको उस 90% बच्चों में आना है या कि बच्चे के 10%. ऐसा नहीं है कि 10% बच्चे की बात कर रहा हूं 90 को मिलती है 10 को बात मिलती है, तो 10 को भी इमीडिएटली उस टाइम पर जॉब मिल जाती है. सो कनाडा इज अ 3 आवर स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, यानी कि जहां पे आप स्टडीज के लिए जाते हैं और आप चाहें तो सेटल भी हो सकते हैं, जैसे कि अभी सर ने बताया कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पर कि आप वहाँ पे जाके पढ़ें और इंडिया में आए, या फिर आप चाहें तो वहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं, जॉब कर सकते हैं. एंड सेफ्टी की बात करें, कनाडा एज अ डेस्टिनेशन, कनाडा रैंक 8 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, यानी कि दुनिया का 8वें नंबर का सबसे सेफ कंट्री है. सो पेरेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा बच्चा बहुत दूर जा रहा है और सेफ है कि नहीं है. तो कनाडा रैंक 8 इन द वर्ल्ड, दैट इज द रीजन कनाडा बिकम द नंबर 1 डेस्टिनेशन एंड स्टूडेंट की फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुकी है. एंड ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस की बात करें कंपेयर टू अदर कंट्रीज, कनाडा में ट्यूशन फी है और जो लिविंग एक्सपेंसेस है काफी कम है और कंट्रीज के कंपैरिजन में. वैसे तो आपको सारी चीजें एज स्कॉलरशिप मिल ही रही है हमारे राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना खर्चा आता है, कितना सेव कर रहे हैं पर्सनली फॉर पेरेंट्स एज वेल. सो कनाडा में जो एवरेज ट्यूशन फी आता है कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है. सो अगर हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात करें तो स्टार्ट होता है 8.5 लाख से, यानी कि आपकी स्टार्ट 3.5 से होती है 8.5 लाख तक. उसके बाद कोई लिमिट नहीं है ट्यूशन फीस की, क्योंकि कोर्स पे वेरी करता है. अगर आप एमबीए टॉप यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं तो आपकी फीस हो सकता है 50,000 भी टच कर जाए, लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें तो 15 से 16 लाख आपकी फीस आती है, जो कि हमारी गवर्नमेंट का पैसा है जो कवर करेगी कोर्स कॉलेज. आज की जो लिविंग कॉस्ट है कनाडा की कंपैरेटिवली बहुत ही कम है, दैट इज 6.25 lakhs per annum, which will be completely covered by government of Rajasthan or scholarship program. So this is about your tuition fee and the living expenses. अब हम बात करते हैं कोर्स रिक्वायरमेंट की. सो कनाडा जैसे तरह में आपको बताया कि जो आपकी 12th के बाद बैचलर्स होती है इंडिया में 3 साल की होती है, बट कनाडा में वो 3 साल की कभी भी नहीं होती. इट इज 4 years बैचलर्स इन कनाडा एज पर नॉट मैरिड एजुकेशन स्टैंडर्ड्स. तो आपकी कोई भी बैचलर्स हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीसीए हो, बीटेक हो और एनी डिग्री एनी बैचलर्स डिग्री वो आपकी हमेशा 4 साल की ही रहेगी. एंड अगर अपन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें तो उसकी ड्यूरेशन 1 साल या 2 साल हो सकती है. सो मेजरली 1 साल या फिर 2 साल. एंड आपकी स्टडीज के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है कनाडा में. अगर आपका कोर्स 1 साल का है तो आपको 1 साल का भी वर्क परमिट मिलेगा. अगर आपका कोर्स 2 साल का है तो आपको 3 साल का डायरेक्ट वर्क परमिट मिलता है कनाडा में काम करने के लिए. उसके बाद you guys need to decide whether you want to work over there or you guys want to come back to India. So I'll say it is a perfect platform, ठीक है, so that you can avail the opportunity. आपको free आपको education मिलेगी, scholarship मिलेगी, जैसे सर ने बताया कि include the flights as well. So foreign travel करने के लिए flight की कोई सस्ती नहीं होती, तो आपकी flight की 1 लाख टच कर जाती है, तो ये गवर्नमेंट का एडेड बेनिफिट है. एंड एक और चीज मेरे सोचते हैं कि मेरा बच्चा जा रहा है अब्रॉड जा रहा है, वहाँ पे उसका मतलब वहाँ पे उसके दोस्त होंगे नहीं होंगे. तो कनाडा की जो सोसाइटी है दैट इज मल्टीकल्चरल. इट मींस आपको हर जगह के लोग आपको वहाँ पे मिलते हैं, स्पेशली इंडियंस. यू विल सी इंडियंस एवरीवेयर इन कनाडा. आपको हर जगह इंडियंस दिखने वाले हैं. देयर आर लॉट ऑफ सिटीज इन कनाडा, सिटीज लाइक टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, वेयर यू हार्डली सी of other countries. You will see Indians everywhere. So it is like home away home from us, for us. And I suggest you please avail this opportunity. And जो आपकी थोड़ा सा requirement को बता देता हूँ studies के लिए. Foreign education sounds very easy. आपको बहुत easy लग रहा है कि हम जा सकते हैं, government of राजस्थान हमें opportunity दे रही है. But there are certain great requirements as well to study in
150 बच्चे होंगे जो भरतपुर से कैसा भेज चुका हूँ ऑलरेडी। सो आप अगर 12th के बाद जा रहे हैं बैचलर्स करने के लिए टॉप यूनिवर्सिटी की बात करूँगा, फिर टॉप यूनिवर्सिटी में टारगेट करेंगे। आपकी जो ग्रेड काउंट है दैट इज एटलीस्ट 80%, 75 to 80% आपका 12th में होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम से आप जा रहे हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए जाएंगे तो हमें एटलीस्ट काउंट है 75% इसकी। सो कनाडा थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव है अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में, बट अगर आप कुछ बड़ी बेनिफिट्स की बात करते हैं यू विल गेट द मैक्सिमम। आई कैन अंडरस्टैंड हर किसी के बैचलर्स में 75-80 नहीं आ पाते, बट दिस इज द थिंग स्कॉलरशिप लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस नीड टू प्रूव योरसेल्फ, देन ओनली गवर्नमेंट Rajasthan will give you something. So that's about Canada. It's a beautiful nation, multicultural society, less expensive, and you can easily cover up your entire living expenses with your part-time job. After 20 hours per week job करने का right मिलता है part-time reading and during your breaks, like आपका भी Christmas आ गया, Christmas के break है, Easter break है, Easter break है, you can work full-time and 40 hours per week. So you can easily cover your living expenses with your part-time job. Still, government of Rajasthan is giving you the opportunity to they will provide you the amount for your living as well, but you can get the benefit of part-time jobs. Earn well, save well, and you can cover everything. So India में आने के बाद सोचते हैं कि इंडिया में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, totally up to you whether you want to come or not. But I suggest you stay there, you will support your family very well, and you will contribute to the economy of India as well, even if you are living there in Canada. So that's about Canada. I will invite everyone sitting here to our IDP office if you have any queries, because I understand the सारी information आपको यहाँ पे नहीं दे पाऊँगा। बहुत सारे questions आपको पूछे होंगे आगे के बारे में, स्टडीज के बारे में, IELTS के बारे में। आप जैसे कि सर ने पूछा था कि IELTS IDP को कौन जानता है, एंड आई सी की बहुत ही हम लोगों ने हाथ उठाया था कि IELTS के बारे में कुछ नहीं जानते हैं ज़्यादा। सर सजेस्ट यू कम टू ऑफिस वंस, एक बार आप जरूर विजिट करें IDP ऑफिस, so that you get in-depth information about studying abroad. So now I'm invited to give some brief about US history. Welcome to Connecting Us, Bahujan India News YouTube channel and other media platforms. I want to a question that many students problem that they are studying in the second year, that graduation, and how to apply this scheme. Okay, so basically your question is how they can able to conquer their study abroad dreams and what to do and all. So it's very easy. We at IDP, what we do is basically we'll just help you out in terms of processing your file to the top 50 universities, which was recommended by the Rajasthan government, and we'll just see the qualification criteria, and we'll just make sure that once you qualify to that, we'll inform you, and then we will go further and do your applications to get your offer letter and all. Once you receive this offer letter, you can able to communicate back to again some of the people who are responsible in terms of the scholarship, and those guys can able to help you out in terms of the scholarship documentation and all. And finally, once that is done, we'll help you out to get your visa also. Thank you so much. So your question is basically how much time will it take in terms of getting the entire process done and all. So normally on an average the next available intake for all the top class university as of now is the September intake. For that we need to actually start the processing right now, because majority of the universities and the top class universities, they run out with the seats by January or February. So it's right time for all the students, and I highly urge all the students to start this process right now so that we can able to apply before time. Thank you. Thank you, sir, connecting us Bahujan India News channel, especially thanks.